Hello everyone, welcome to this lesson of game theory. We are studying this game theory. The theory of games started in 20th century and Newman published it all, published their work Theory of Games and Economic Behavior in 1944. So, Newman developed game theory in a mathematical way and utilizes the minimax principle, which involve the fundamental idea of minimization of the maximum loss or the maximization of minimum gain. The game theory is capable of analyzing very simple competitive situations. So, we can say game theory is a mathematical theory that deals with the general features of competitive situations. Now, we will discuss here competitive games. अब हम लोग कॉम्पिटिटिव गेम्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसको देखने की. सो वी हैव सम कॉम्पिटिटिव गेम्स. Competitive situations or a competitive situation is called a competitive game if it has some properties. Some of them we have taken here. Property 1, there are finite number of competitors called players. गेम थ्योरी में जो कॉम्पिटिटर होंगे उनको प्लेयर बोलेंगे. अगर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स जिनको हम प्लेयर बोल रहे हैं, क्योंकि गेम है, गेम में जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर इज सपोज n और n को हमने इक्वल टू लिया है, देन दैट गेम इज नोन एज 2-person गेम. और अगर ये 2 से ज़्यादा हों, अगर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो उसको बोलेंगे n-person गेम. नाउ इन दिस गेम थ्योरी वी आर कंसर्निंग और वी विल डिस्कस 2-person गेम. हम 2-person गेम के बारे में ही डिस्कस करेंगे. उस जितना भी होगा हमको 2-person पर ही 2x2 गेम पर लाके उसको वर्क करना होगा. एंड ईच ऑफ द n players has available to him a list of finite number of possible courses of action. ये जो लिस्ट होगी, द लिस्ट नीड नॉट बी सेम फॉर ईच प्लेयर. Also, a play is said to be played when each of the players का मतलब competitors, जैसा हमने लिया हुआ है competitive game, competitors. A play is said to be played when each of the players, that means competitors, chooses a single course of action from the list of courses of action available to him. And these are some properties of competitive games. जो गेम है उसमें हमारे 2 प्लेयर होंगे. 2 प्लेयर में एक तो जीतेगा, जितना से वो जीतेगा उतने से ही वो हारेगा दूसरा. तो ये यहाँ पर गेम चल रहा है. यहाँ पर गेम थ्योरी का गेम चल रहा है. उसमें कंपटीटर भी हैं
और इसी को एनालाइज करना होता है। कुछ टर्म्स है जिनको डायरेक्ट यूज करते हैं, दीज आर सम टर्म्स। मूव, चॉइस। मूव का मतलब है टू मीन अ पॉइंट इन ए गेम एट विच वन ऑफ द प्लेयर्स पिक्स आउट एन अल्टरनेटिव फ्रॉम सम सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। चॉइस का मतलब होता है अल्टरनेटिव पिक्ड आउट, और हम दोनों की जगह मूव को ही यूज कर लें तब भी चलेगा। मूव फॉर बोथ नोशंस, हम मूव को ही कर लें चॉइस में भी मूव में भी, तो वो भी चल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो वर्क चल रहा है वो गेम थ्योरी का चल रहा है, और उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको कि डिस्कस करना ही होता है। सो फाइनाइट और इनफाइनाइट गेम क्या होते हैं इसको भी देख लो। फाइनाइट गेम जिसमें मूव फाइनाइट हो, सो ए गेम इज सेड टू बी फाइनाइट if it has a finite number of moves, each of which involves only a finite number of alternatives. उसके पास फाइनाइट नंबर मतलब फाइनाइट ही फाइनाइट हो, ठीक है ना। फाइनाइट गेम अगर फाइनाइट नहीं है तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट गेम। सो अ गेम इज सेड टू बी फाइनाइट if it has a finite number of moves and each of which involves only a finite number of alternatives. That is known as finite. If it is not finite, then it is known as infinite. अगर finite नहीं है तो उसको बोलेंगे infinite। आगे चलते हैं। अभी तो थ्योरी चल रही है, न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेसन में ले लेंगे। थ्योरी जिसको करनी है वो थ्योरी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जीरो सम गेम। समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n पी आई थीटा इक्वल्स टू 0 एन competitors courses of action. So we can define zero sum game. A game is known as zero sum game if the sum of payments of all competitors players का after a play of the game is restricted to be zero. That is known as zero sum game. 2% zero sum game or rectangular game, इसको ही rectangular भी बोलते हैं. So this is the basic definition. A game in which the algebraic sum, algebraic मतलब प्लस माइनस हमको लेना होगा, of gains and losses of all the players is zero are called zero sum game. Algebraic means taking the symbol of plus and minus accordingly according to situation. ये कुछ नोट है. 2%, so we can say in 2% zero sum games P of matrix represented in rectangular form, therefore it is known as rectangular game. जो P of matrix है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, इसलिए उसको रेक्टेंगुलर गेम या 2% जीरो सम गेम कहते हैं. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा किस पे, कि इस पे P of मैट्रिक्स. ये P of मैट्रिक्स डिफाइन P of मैट्रिक्स इस तरह से हो सकता है, या P of मैट्रिक्स समझाओ क्या होती है, ऐसे हो सकता है, या अकॉर्डिंगली. सो P of मैट्रिक्स in a 2% zero sum game, the resulting gain can be represented in the game of a matrix that is known as P of matrix. P of matrix का दूसरा नाम होता है गेन मैट्रिक्स, गेन GAIN गेन, और P of मैट्रिक्स.
अब पी ऑफ मैट्रिक्स इज ए टेबल। टेबल यहाँ पर ये होती है सारणी, टेबल ये वाली इमेज होती है, इसको बोलते हैं सारणी। ओके, विच शोज हाउ पेमेंट्स शुड बी मेड एट द एंड ऑफ प्ले और गेम। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर रहे हैं कि पी ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है, ये n% गेम के लिए है। इज पी ऑफ मैट्रिक्स, ए के लिए हमें पी ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से है, अगर ए जीत रहा है, ए इज विनर, इज पी ऑफ मैट्रिक्स, तो E11, E12 जे कॉलम के लिए ए आई जे हो जाएगा, है ना। दिस इज E1। अगर हम आई जेथ कॉलम के लिए लेंगे तो दिस विल बी A11, A12, A1J, A1N। अकॉर्डिंगली यहाँ पर आएंगे AMN। अगर ये हमारी A की पी ऑफ मैट्रिक्स है तो B की पी ऑफ मैट्रिक्स में निगेटिव, मतलब A जितने से जीत रहा है B उतने से ही हार रहा होगा। सो B पी ऑफ मैट्रिक्स, B के लिए पी ऑफ मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ E11, नेगेटिव ऑफ E12, नेगेटिव ऑफ E1J, नेगेटिव ऑफ E1N, यहाँ पर N नंबर ऑफ। इसी तरह से हम नेगेटिव ऑफ EMN। सो दिस इज the P of matrix, we can say B is P of matrix and this is E is P of matrix। यहाँ पर जो चर्चाएं की हैं P of matrix के बारे में, तो बेसिक जो थ्योरी है P of matrix क्या होती है, गेम क्या होता है, 2% जीरो सम गेम क्या होता है, रेक्टेंगुलर गेम क्या होता है, उनके बारे में कुछ डिस्कशन किए हैं। गेम थ्योरी कब स्टार्ट हुई, किसने इसको स्टार्ट किया, मैथमेटिकल वे किसने इसको दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो डिस्कशन किया है इसको देखेंगे, और इसके आगे जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल डिस्कशन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली, और जल्दी से जल्दी आपको गेम थ्योरी का एक ओवरव्यू दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ सकते हैं, इजीली समझने में आ रहा होगा, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से एक गेम की तरफ आप, और गेम थ्योरी में ज़्यादा कुछ विशेष प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं और समझें। नेक्स्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे स्ट्रैटेजी एंड सेटल पॉइंट एंड मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी। तो स्ट्रेटजी और कुछ क्राइटेरिया है और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आगे के कुछ वीडियोस आप तक पहुंचाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।